Rahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Welcome to the lecture. Today, the topic of discussion is correlation and the coefficient of correlation. My name is Muhammad Abdullah. So, now start the lecture. What is correlation? Basically, it is the strength or the degree of association between the two study variables within the same study. This point is or the very important, that it is the strength or the degree of the association or interrelationship between the two variables within the same study or within the same individual or the within the same subject. So this letter that is within the same object or within the same study is very important, because the definition is incomplete if you don't write these two words. So these two words are very important, that within the same study or within the same object or within the same individual. So this is the complete definition. It is a strength of association between the two study variables within the same study. So sorry, why we find the why we calculate the correlation? Basically, if we want to see the relationship between the and association between the two variables, so we have to calculate the coefficient of correlation. This is basically the simplest explanation why we calculate the correlation. If we want to see whether there is some relationship exists between two variables or not, so we to see this relationship or to see this relationship of the association, so we have to calculate the coefficient of correlation to interpret whether the relationship between these two variables or between the two variables within the same study occur or not. So small r is the it is coefficient of correlation. It is represented by the small r. If we find out the coefficient of correlation of the sample, so we have to express it with the help of the small r. And if we calculate the coefficient of correlation of a population, so it is represented by the small p or the rho. So these terms can be in the MCQ, so you should know about that. Moving forward, what is coefficient of correlation? Coefficient in the previous slide I tell about the definition of the correlation. So coefficient of correlation definition is similar, that is the it measures the degree and direction of the association between the two characteristics in the same individual or within the same study. These two words are very important, because the definition is incomplete if you don't describe these two words. So for example, height and weight of the same individual, surface area and the BMR, whether the association occur or not, pulse and temperature. So I made a video on the chi-square. In the chi-square test I tell you about that. Chi-square only indicate the presence or absence of the association, whether the association is some association is present or not. But in the coefficient of correlation, it tells about the degree, magnitude and direction of the association, whereas a chi-square test only tells about the presence or absence of the association, but it doesn't measure the degree of association. So how we calculate the coefficient of correlation? The relationship between two variables, as the mean is calculated, as the mode is calculated, median is calculated. So this coefficient of correlation is calculated basically with the help of the formula, and this formula you should remember by heart and can be on your fingertips. So the relationship between the two variables can be measured by a numerical value called as a coefficient of correlation, as I already stated that, which is denoted by r, which defines both the strength and direction of the linear relationship between the two variables within the same individual. So एक इंडिविजुअल के अंदर दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन, उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितनी ज़्यादा एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, वीक एसोसिएशन है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल आर. And x and y are the observation values, and small r values lies between the -1 to +1. So this is the formula of the coefficient of correlation. So I describe this formula here and later on also. So this is summation
square bracket small bracket x minus xm means the arithmetic mean of x, multiply by this star shows the multiplication sign, y minus y mean means the arithmetic mean of y, divided by square root or the under root summation x minus xm का होल स्केयर मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई एम का होल स्केयर. So this is the formula of the coefficient of correlation. With the help of this formula we find out the degree and direction of association. How? I will tell you later on. So interpretation. So suppose that we calculate values, there are some values given by the examiner, we calculate the coefficient of correlation. So how interpret the result of the coefficient of correlation? So this slide is about the interpretation of the coefficient of correlation. If the I tell for in the former slide I tell you that the r value is ranging from the -1 to +1. So if the value is +1, so it shows a positive correlation, perfect positive correlation, that is a strong association. Whereas if the value is -1, it shows the perfect negative correlation, and if the value is 0, there is absolutely no correlation. And if the values lies between the 0 to +1, that is the partial positive correlation, and vice versa, that is the if the values lie between the 0 and -1, it is the partial negative correlation exists. So when you practice the multiple questions, you should know these 6 entities or the 5 entities, that with what is the meaning of the +1, what is the meaning of the -1, what is the meaning if the value is in between the 0 and +1. So you calculate, first you calculate the values, then you interpret the results. So this is the interpretation of the result, and this slide is about the graphic presentation of the coefficient of correlation. हम क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उनका एक ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ बना के हम क्या कहते हैं कि सर्टेन पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. अब एक्स एक्सिस के ऊपर भी हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स की स्टडी हमने करनी है. एक्स एक्सिस के ऊपर भी वेरिएबल ले लेते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर भी वेरिएबल ले लेते हैं, और वहाँ से दोनों के पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. आगे मैं आपको शो करता हूँ. और उन पॉइंट्स को जब आपस में मिलाते हैं तो फिर एक डॉटेड एक लाइन बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि रिग्रेशन लाइन. और दिस लाइन जो है रिग्रेशन लाइन हमें शो करती है कि डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे है. ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई +1 -1 और ये जो वैल्यूज़ आ गई न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये तो शो करती हैं कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसी है, कि कितनी स्ट्रेंथ है एसोसिएशन की. लेकिन ये जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ये हमें बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन कौन सी है. तो ऑब्वियसली हम इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं +1 से -1 से, लेकिन ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी की जाती है. सो द लाइन में भी द वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और द स्लांटिंग इन वन अदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. वर्टिकल होगी तो वो आपको पता, अभी मैं बता दूंगा कि वो 0 जब वैल्यू आर की, या जब कोई कोरिलेशन ना हो, नो कोरिलेशन, उसके अंदर वो वर्टिकल लाइन आ जाती है. फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी आती है, डायगोनल भी, स्लांटिंग भी, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट दिस इज़ अ स्कैटर डायग्राम और स्कैटरग्राम. इसके अंदर हमारे पास क्या किया है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एक वेरिएबल ले लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल ले लिया है. इनकी हमारे पास एज 5, 10 और अप टू 25 और वेट हमने ले लिया है 30. सो वी बेसिकली looks the correlation between the age and weight within the same individual. So यहाँ पे हमने एक ये हमारे पास आया, प्लॉट कर दिया हमने, ये डॉट डॉट लगा दी, ये लाइन हमारे पास आ गई. अब लाइन के अंदर हमारे पास आपको पता लग गया कि ये लाइन हमारे पास, इसे कहते हैं रिग्रेशन लाइन. स्कैटरग्राम प्लॉट्स द वैल्यू ऑफ द ईच पेयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस at the point of intersection of the vertical line through the x axis, x value on the x axis, and of the horizontal line through the y value on the y axis. The point appear where these lines intersect for all values. For example, अगर हमारे पास ये सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये वाला आप देख लें, आपने ये y एक्सिस है, y एक्सिस से भी एक लाइन लगानी है और x एक्सिस से भी एक लाइन लगानी है. तो जहाँ पे हमारे पास
क्या कहते हैं पॉइंट आ गया, वो ही हमारे पास रिग्रेशन लाइन के टॉप के ऊपर वो आपको वैल्यू शो हो रही होगी। तो इस तरीके हम रिग्रेशन लाइन हम लगाते हैं, बनाते हैं कि किस तरीके हमारे पास रिग्रेशन लाइन आई जहाँ पे वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, वहाँ पे एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं वाई एक्सिस से, और और एक्स एक्सिस से एक वर्टिकल लाइन लगाएं। अब वर्टिकल लाइन यहाँ से आ जाएगी वाई एक्स एक्सिस से, और हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी वाई एक्सिस से। जहाँ पे ये मीट करती हैं वहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आ जाएगा वैल्यू का, कि यहाँ पे वैल्यू फॉल करती है। उन सारों को ज्वाइन करेंगे आप तो आपके पास एक क्या चीज़ बन जाएगी, डैट इज़ द रिग्रेशन लाइन बन जाएगी, और वो आपको शो करेगी कि वेदर द डिग्री व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एसोसिएशन। अब इसके अंदर देखें ये उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, तो एक लाइन हमारे पास स्ट्रेट बन गई है। अब ये शो कर रही है एज द एज इंक्रीजेज द वेट ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेज। सो इस तरीके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलेंगे फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, ये हमारे पास -1 से +1 के दरमियान ही होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप हो या कोरिलेशन अगर परफेक्ट नेगेटिव हो तो हमारे पास क्या होगा, कैसा स्कैटरग्राम बनेगा। तो स्कैटरग्राम बेसिकली इस डायग्राम को जो बनाते हैं इसे कहते हैं स्कैटरग्राम कहते हैं। तो इन दिस केस क्या होगा, हमारे पास स्कैटर डायग्राम जो फॉल एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन दैट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी ये वाला जो है ना ये पॉजिटिव की एक एग्जांपल है। अब नेगेटिव के अंदर क्या होगा, नेगेटिव के अंदर यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर, बिकॉज परफेक्ट नेगेटिव है तो वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही फॉल करेगी, लेकिन वो लेफ़्ट टू राइट स्लोप्स डाउनवर्ड होगी। आगे इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। डैट इज़ द नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमने एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्लॉट की, हमने वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ प्लॉट की, इनको आपस में मिला दिए जहाँ पे वैल्यूज़ जो है एक रिग्रेशन लाइन बन गई। अब आपस में इनको मिला दिया, एक्स एक्सिस से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वर्टिकल लाइन आ गई, यहाँ पे वैल्यू फॉल कर रही है। अब इसकी देखें डायरेक्शन कहाँ पे है, y axis towards x axis on the straight line that slopes downward moving from the left to right. So this is the explanation of the scattergram. There is a regression line that slopes downward from left to right, and this is a perfect negative correlation because all the values fall on the straight line. अगर straight line से इधर उधर fall करेंगी तो वो हमारे पास क्या होगा, that is a partial correlationship. अब इसकी एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर और द ब्लड प्रेशर, द रिलेशनशिप बिटवीन द बीटा ब्लॉकर एंड द ब्लड प्रेशर। जैसे जैसे बीटा ब्लॉकर की डोज हमने कम की है तो देखें ब्लड प्रेशर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है। बीटा ब्लॉकर की डोज यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है। as we decreases the dose of the beta blocker, the blood pressure of the patient increases. So there is a को रिलेशनशिप, और कौन सा को रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ नेगेटिव को रिलेशनशिप, बिकॉज एक को हम कम कर रहे हैं तो दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हमने वेट एंड एज की जब एग्जांपल देखी थी तो देखें कि एज द एज ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज द वेट ऑफ द पर्सन इज आल्सो इंक्रीजेज। सो दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। एक यहाँ पे क्या है कि एक को हम कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, सो दैट इज़ अ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इस तरीके दैट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके का अगर आपको स्कैटरग्राम शो किया हो तो दैट इज़ द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। अब परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप आपको जिस तरीके पिछली डायग्राम मैंने दिखाई है, ये है वेट ऑफ द चाइल्ड एंड एज ऑफ द चाइल्ड। एज द एज ऑफ द चाइल्ड इंक्रीजेज द वेट ऑफ द चाइल्ड इज आल्सो इंक्रीजेज। सो दिस इज द परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप। ये भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है लेकिन स्लोप्स अपवर्ड है। पिछली डायग्राम देखें, ये भी लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप्स डाउनवर्ड है। अगर स्लोप्स डाउनवर्ड हो तो दैट इज अ नेगेटिव को रिलेशनशिप। इफ द स्लोप इज अपवर्ड दैट इज द परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप। आगे मूव ऑन करते हैं। व्हेन आर इज इक्वल टू द जीरो, जब कोई रिलेशनशिप ना हो तो जो स्टडी वेरिएबल्स हैं उनकी जो एक रिग्रेशन लाइन बनेगी वो हमारे पास नॉन लीनियर सारी होगी। यहाँ पे बेहतर है कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन आपको शो होती है। फॉर एग्जांपल the relationship between the aspirin and blood pressure, we know that there is no relationship between the aspirin in the and the blood pressure. So उनके अंदर जो हमारे पास लाइंस आई हैं वो देखें, दैट इज़ अ वर्टिकल, तो शोइंग दैट देर इज़ अ नो रिलेशनशिप, नो ज़ीरो को रिलेशन बिटवीन द एस्पिरिन एंड द ब्लड प्रेशर। सो आपको एक स्लोपिंग डाउनवर्ड अगर मिल जाए और लीनियर स्ट्रेट लाइन है तो दैट इज़ द परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशनशिप। एग्जाम्पल,
दैट इज द बीटा ब्लॉकर एंड द ब्लड प्रेशर। अगर लाइन अपवर्ड मिल जाए स्कैटरग्राम के अंदर तो दैट इज द परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप। एग्जाम्पल एज ऑफ द चाइल्ड एंड वेट ऑफ द चाइल्ड, और एज ऑफ द इंडिविजुअल वर्सेस वेट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हमारे पास नॉन लीनियर सारा डायग्राम मिले तो वो जीरो को रिलेशनशिप है। या वर्टिकल सारा हमारे पास आपको डायग्राम मिल जाए, स्कैटरग्राम मिल जाए सॉरी, तो ये हमारे पास जीरो को रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये वही शो किया हुआ है कि वेरियस वैल्यूज ऑफ द को रिलेशन कोफिशिएंट। अगर आर जीरो है तो देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल आपको स्ट्रेट मिली है, यहाँ वर्टिकल मिल सकती है, यहाँ आपको स्ट्रेट मिलेगी, एज आई शो यू इन द केस ऑफ द एस्पिरिन एंड द ब्लड प्रेशर। देन में परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन, देर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट that slopes upward. Perfect negative correlationship. When r is equal to the -1, that is the straight line that slopes downward from the left to right. Imperfect अगर होगी या partial होगी तो आपने ये याद रखना है कि r अगर ग्रेटर दैन 0 है लेकिन हमारे पास लेस दैन 1 है, मतलब r 0.1 से लेके 0.9, मतलब पार्शल पॉजिटिव को रिलेशन को वो इम्परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन कह रहा है। तो वैल्यूज़ देखें आपकी जो फॉल कर रही हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल नहीं कर रही, वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो है ये है पार्शल पॉजिटिव को रिलेशन। अगर बिल्कुल लाइन के ऊपर फॉल करें तो that is the perfect correlation. If the values doesn't fall on the straight line, so that is a partial positive correlation. Same is the case of the imperfect negative correlation. उसके अंदर लाइन डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, ये जिस तरीके नीचे शो किया हुआ है, पूरी डायग्राम नहीं आई, सॉरी टू से दैट। देन वी हैव द कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि काई-स्क्वायर टेस्ट जो था वो हमें सिर्फ बताता है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कि काई-स्क्वायर टेस्ट मैंने आपको पढ़ाऊंगा कि काई-स्क्वायर टेस्ट जो है पहले भी बताया था कि इट ओनली शोज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एसोसिएशन, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टेल्स अबाउट द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विद इन द सेम ऑब्जेक्ट। सो ये हमारे पास यही लिखा हुआ है, इसके अंदर आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज करते हैं। इन द एग्जामिनर ओनली गेव द, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आता है, द एग्जामिनर ओनली गेव द वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड वाई एंड देन असाइन यू calculate the coefficient of correlation and also interpret the direction of correlation. So अब उसके अंदर वो क्या देगा आपको, दो वेरिएबल्स का आपको पता है कि ये दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन है। ये अब दो वेरिएबल्स की एसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए दो वेरिएबल्स की वो वैल्यू भी देगा। सीरियल नंबर तो यानी कितनी एंटिटीज़ हैं, कितनी डिग्रीज हैं, 1 2 3 4 5, तो वो तो सीरियल नंबर ना भी लिखे, वो एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ आपको दो वेरिएबल्स की एक आर्जी सारी वैल्यू दे देगा। तो डैट इज़ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ये आप कह सकते हैं। तो एक्स आ गया या वाई की वैल्यूज़ दे देगा। अब आपने इन दो कॉलम से सारा कॉलम्स बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अगर आप फार्मूले को जेहन में रखें तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। ये फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी सिर्फ फार्मूले पे ध्यान दें। आर इज इक्वल टू द समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, जो मैंने आपको पिछले फार्मूला शो किया था। उसने हमें एक्स दिया था, फार्मूले में देखिए हमें क्या क्या निकालना है, हमें एक्स बार निकालना है, हमें वाई बार निकालना है, हमें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, हमें वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालना है। सॉरी मैं एक्स माइनस एक्स बार जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके ऊपर बार लगाना भूल गया, तो वो उसको आप लगा लीजिएगा या आप सपोज करने के लगा हुआ है। तो एक्स निकल आया, एक्स बार मैंने निकाल लिया बिकॉज ये एक्स बार क्या अरिथमेटिक मीन है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास मैंने इस तरीके फार्मूला लगाया और फार्मूला के तहत निकाल लिया बिकॉज 9 7 16 और 5 21 और 21 और 23 21 और 3 कितने 24 और 1 5 25 डिवाइडेड बाय 5 करें तो 5 5 5 आता है। तो ये अरिथमेटिक मीन 5 इस तरीके निकला है। अरिथमेटिक मीन आई टेल यू इन द आई ऑलरेडी टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन इन द former my lectures on the YouTube, so you consult or watch those videos to know how to calculate the arithmetic mean. फिर x minus x bar 1 minus 5 is equal to the minus 4, ये x minus x bar मैंने निकाल लिया। फिर x माइनस एक्स बार जो फार्मूला में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ये आपने निकालनी है। फार्मूला आप पहले लिख लें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार मैंने x बार निकालना है, फिर मैंने x माइनस एक्स बार निकालना है और डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स बार का होल स्केल। सो x बार निकल आया, x माइनस एक्स बार का डिफरेंस निकल आया, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्केल निकल आया।
सिमिलरली आपने ये काम करना है यहाँ तक वाई बार, वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार का होल स्केयर, ये सारी चीज़ें तो निकल आई। अब बेसिक जो टास्क है वो ये है, फार्मूला के अंदर देखिए सुमेशन बाहर है, तो पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को आपस में कैलकुलेट करना है, तब जाके समेशन करेंगे एंड के ऊपर। सो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है वाई माइनस वाई बार की वैल्यू से, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को। ये -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू द 16, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू द 4। इस तरीके आपने कैलकुलेट कर लेना है। देन हमारे पास लास्ट के अंदर आपने क्या करना है, ये सम भी तो करना होता है ना, तो इसके अंदर सम के अंदर आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, इसके अंदर सारों के अंदर आपने सम कर लेना है। आपका आंसर क्या निकल आएगा, ये आपका आंसर निकल आया। फिर नीचे देखें जो डिनोमिनेटर के अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या वैल्यू है, दैट इज द एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर है, उसका हमने सम करना है। पहले याद रखें, पहले स्केयर ब्रैकेट्स को या राउंड ब्रैकेट्स को आप सॉल्व किया करें, फिर आगे काम करेंगे, मैथमेटिकल्स रूल्स को फॉलो करेंगे, तब आपका आंसर ठीक निकलेगा। पहले एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर का आपने सम ले लिया, फिर वाई माइनस वाई बार का जो जितना भी था जितनी इंडिविजुअल वैल्यूज आई थी उनका सम ले लिया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू द 1600। आर की वैल्यूज़ हमें पता लग गया था कि जो न्यूमिनेटर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसका सम ले लिया, तो वो तो हमारे पास 40 निकल आई। डिनोमिनेटर में हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे, वो आपको बता दिए किस तरीके आया है, तो 1600 फिर स्क्वायर रूट उसका लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आई है डैट इज़ द 1। सो दिस इज़ द परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन द टू सीरीज़। अब जो भी उसने वैल्यूज़ दी थी उसका हमारे पास एसोसिएशन क्या है, देर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई वैल्यूज़। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। इसके अंदर आपको पता लग गया कि इस तरीके आपने क्या कैलकुलेट करना है, आर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना। आर वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर आपने रिजल्ट भी लिखना है। मैंने आपको बता दिया अगर +1 है तो हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन। और अब आगे देख लें कि एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसके अंदर भी वही ऑब्जर्व वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्स एंड वाई की, हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन बतानी है। अब यहाँ पे देख लें कि पिछली दफ़ा तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स के ऊपर नहीं लिखा था, इस दफ़ा दोनों पे नहीं लिखा, तो इसको ये मिस्टेक है मेरे से हुई, तो आई एम सॉरी फॉर डैट। आपने इसके ऊपर लिख लेना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर है, वाई माइनस वाई बार का होल स्केयर है। सो उसी तरीके एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर आपने निकाल लेना है, एंटिटीज इस तरीके पुट करनी है। वाई के लिए भी ये सारा कुछ कर लेना है। फिर हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, ये न्यूमिनेटर में जो चीज़ें हैं इनको सारों को पहले मल्टीप्लाई करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को उनका सम कर लेना है, डैट कम्स आउट द 13। अब जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर, वो आपने इस तरीके निकाल लें इंडिविजुअल वैल्यूज़ का, उसको आपने सम करना है, सम कर दिया। इसी तरीके वाई माइनस वाई बार का होल स्केयर आपने निकालना है और सम कर देना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट, बिकॉज फार्मूला में स्क्वायर रूट है तो उसका या स्क्वायर रूट या अंडर रूट आप कह सकते हैं, तो अंडर रूट आपने लेना है, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देना है। अब जो यहाँ पे वैल्यूज़ आई है डैट इज़ अ 0.80। सो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, देयर इज़ अ पार्शल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन दिस स्टडी। This is all about the interpretation of the coefficient of correlation. Hope you will understand well and enjoy the lecture. Thanks very much, and stay tuned to the YouTube lecture by subscribing it, and also